Now, the question number 17, I am going to put you the answer. Open the PDF file I have already sent to you. To some extent, it is a typical sum, but I expected from you. EF Limited invited application for 80,000 equity shares. In short form, 80,000 equity shares invitation है. Application money received on 1,20,000 shares. Over subscriptions and pro rata is must. Face value, it is 50 plus 10 because in the question you just follow. Face value is 50, 20% is the premium. 50 rupees का 20% is 10% is 5, 20% is 10. That means 50 plus 10, the 20% premium. Installment, application 15 plus 5, allotment 10 plus 5, first call 15 and balance on second and final call, that became 10. So it is carried 50 plus 10. Applied is 1,20,000, allotted is 80,000. Now there is a 40,000 gap, 20,000 immediately rejected and refunded, so it became 1 lakh. So what will be the pro rata? I have written here 10:8, reduced to 5:4. Clear? Now the 2 point is there. The 2 holder is there in this question. One is Seema and other is Shahaj. Seema holding means allotted. मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ. Holding means allotted 4,000 shares. अब Shima क्या किया? Shima is failed to pay his allotment money, but he paid all the dues along with the first call. इसका मतलब उसके पैसे पूरा आ गया. ध्यान रखना क्वेश्चन में. But what about the Shahaj? Shahaj is failed to pay his first call money and his share is forfeited. This is the part which we have to keep it in mind. It's a very sincerity and calculation to be based on pro rata. इसी को ध्यान रखने पड़ेंगे. ऐसे करके ट्रिकी पॉइंट आते रहेगा क्वेश्चन में and you have to solve it out. Now the point is that सीमा के बारे में बोल रहा हूँ. सीमा होल्डिंग बार बार बोल रहा हूँ. होल्डिंग means allotted. 4,000 हमने allot किया. That means you have to calculate how much Shima applied for. Go to the pro rata. मैंने यहाँ पे कर रखा है, देख लो. Applied is allotted. Applied 4 और allotted 4, applied 5. Always मांगेगा ज़्यादा मिलेगा कम. तो मेरे पास allotted फिगर है, मैं इसको रिवर्स कर लिया. तो 4 allotted when applied is 5, therefore it became 5,000 उन्होंने मांगा था. ये तक तो तुम लोगों को क्लियर हो गया, मेरे को पता है. 5,000 उन्होंने मांगा था, हमने उसको 4,000 दिया. माइनस की नॉट पेड निकाला ऊपर, देख लो. 5,000 into 15 plus 5, that becomes 75,000 and 25,000. Allotted is 4,000. 15 plus 5. मैं प्रीमियम को अलग लेके चल रहा हूँ for your convenience, क्योंकि प्रीमियम never be forfeit. इस चीज को माइंड में रखोगे always. So again 4,000. 15 plus 5 is equal to 60 plus 20. What is the excess? 15 plus 5 is equal to 20,000 is my excess. Now come to the point of allotment. Allotment 4,000 का allotment किया था. 4,000 into 10 plus 5. 10 plus 5 means देखो यहाँ पे installment में is given. Allotment is a 10 is the face value and 5 is the premium. तो सीधे मैंने यहाँ पे bifurcation करके ले रहा हूँ. 10 plus 5. 10 is to 10 into 4,000, 40,000 and 5 into 40,000, 4,000 into 20,000 is the allotment due. Now, what is my excess money? 20,000 is my excess money in application. तो उसको मैंने कहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा? Only share capital में, not in premium. बार बार बोल रहा हूँ कि my tendency is to forfeit the maximum money, so we can adjust it with the share capital only, not in premium. Therefore, now what will be the due? 20 plus 20, 40,000. ये जो पैसा इन्होंने allotment दिया नहीं था, but this 40,000 is came along with the first call. This is the sum.
और कुछ भी नहीं है। दिस मीन्स यहाँ पर हम लोग दो टाइप कर सकते हैं, वन इज द कॉल्स इन एरिया बेसिस एंड कॉल्स इन एडवांस बेसिस में। बट पहले मैं आप लोगों को नेट फिगर कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। नेट फिगर में करो, कॉल्स इन एरिया कॉल्स इन एडवांस की कोई पॉइंट नहीं है, उसमें खाली एक एंट्रीज प्लस एक एंट्रीज माइनस होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता है। हम बाद में सीखेंगे, पहले नेट तो करना सीख जाए, उसके बाद हम कॉल्स इन एरिया एंड एडवांस की कैलकुलेशन करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग द जर्नल एंट्री। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी कितने में आया, 1,20,000। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं जर्नल चूज कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर आया मेरे पास, 1,20,000 आया था, इनटू व्हाट 15 प्लस 5 दैट मींस 20, तो 12 दूनी 24, 24 लाख आई हैव रिसीव्ड। 24 लाख मेरे पास आया था। इसके अंदर 24 में 5 रुपया प्रीमियम है, 5 इंटू 120 एंड 15 रुपीज इज माई कैपिटल इंटू 1,20,000। अब मैं वेरिफिकेशन दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेकंड जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब इसमें क्या होगा, कैपिटल ट्रांसफर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर होगा। मैं कंबाइंड एंट्री डाल रहा हूँ, होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। रिफंड भी मैं इसी में डाल दूंगा एंड अलॉटमेंट भी, तो 4 एंट्री आएगा क्रेडिट साइड में। सी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर allotment to bank. Clear? What will be the debit amount is 24 lakh. Very carefully इसको देखो, मैं combined entry से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, because my offer was only 80,000, तो 80 into 15 12 lakhs. Clear? 80 into 15 that became 12 lakh. What will be the premium, 80 into 5 4 lakh. शेयर अलॉटमेंट में कितना लेंगे, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कितना करेंगे, देखो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1,20,000 आया, उनमें से मैंने 20 रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा पास था 1 लाख। तो ये रिजेक्शन कितना हो गया, 20 इंटू 20 4 लाख रिजेक्शन जो बैंक में एंट्री आएगा। अब मेरे पास कितना बचा, मेरे पास था 80,000 की ऑफर, तो 80 माइनस 1 लाख 20,000 ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट में इंटू 20 रुपीज करके। क्लियर? तो जो 20,000 मेरे पास एक्सेस था ऑन एप्लीकेशन, वो हम ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट में 20 रुपीज करके, बिकॉज द एप्लीकेशन मनी इज 15 प्लस 5, so it became again it is a 4 lakh. तो 4 4 8 4 12 12 plus 12 is equal to 24,000, 24 lakhs. Clear? Now allotment due entry. अलॉटमेंट ड्यू कितने में होगा, 80,000 के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज माय इशू और ऑफर इज 80,000। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच, अब यहाँ पे देखो 80,000 इंटू प्रीमियम में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो
80,000 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 80,000 into 10 capital and 80,000 into 5 is my premium. So 80 into 10, 8 lakhs credit and 80,000 into 5, 5 at 40, that is 4 lakh. What will be the total capital? It is a 8 plus 4, 12 lakh. Clear? Now, बैंक के एंट्री. अब बैंक के एंट्री में क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा क्योंकि कुछ पैसा नहीं आया था, वो मैं अभी बता रहा हूँ. मैं एंट्री ले रहा हूँ, मैं इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज द शॉर्ट ऑफ स्पेस. बैंक अकाउंट डेबिट to equity share allotment account. Now, what will be the amount due? It is 12 lakh. See very carefully. 12 lakh was due on allotment. हमने सेकेंड एंट्री में जब मैंने एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया था वहां पे देखो अलॉटमेंट में हमने 4 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिया. दिस इज दैट फिगर. 20,000 जो रिजेक्ट होने के बाद 1 लाख था, 1 लाख में से 80 मेरे को लेना है. 20,000 ये जो था ये अमाउंट को हमने ट्रांसफर किया था. दैट मींस ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड द 4 लाख रुपीस फ्रॉम एक्सेस एप्लीकेशन 8. तो नाउ इट बिकेम 8 लाख. अब 8 लाख में से एक ने पैसे देना था, दिया नहीं है. फेल टू पे. हु? मिस्टर सीमा, मिसेस सीमा. ओवर व्हाट अबाउट इट? सीमा इज फेल टू पे his allotment money due. What is actual due? That is we have already यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है 40,000. तो 12 लाख में से 4 लाख तो मेरा जो ट्रांसफर हुआ है एप्लीकेशन के अलॉटमेंट उसको माइनस किया एंड देन 40,000 को भी हम माइनस करेंगे क्योंकि इसका पैसा नहीं आया था, बाद में आ गया था. 40 नहीं होगा, ध्यान रखना. तो what will be the amount? It is 7,60,000 will be arrived in bank account. 7,60,000. Hope it is clear. ये समझ में आ गया. वर्किंग करके करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगा. अपना क्या करना है? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. फॉरफिट तो होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है शिमा इज अनेबल टू और फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी बट ही पे ऑल हिज ड्यू ऑफ अलॉटमेंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते कोई फॉरफिट एंट्री नहीं है, कोई शॉर्टफॉल ऑफ शेयर्स भी नहीं है. क्लियर? तो इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स capital account credit. What is my first call installment? 15 rupees. तो 80,000 into rupees 15. अब यहाँ पे एक चीज मार्किंग करो, इसमें प्रीमियम उन्होंने दिया नहीं है. It is to some extent easy. So 15,000 it became 12 lakhs again. Clear? अब ध्यान रखना अलॉटमेंट की 40,000 नहीं आया था, वो इसका साथ आएगा. इसका मतलब 12 लाख तो आएगा ही आएगा. नंबर 1 उनमें से 40,000 ऐड होके आएगा जो सीमा ने नहीं दिया था, वहां पे फेल हुआ था तो यहाँ पे दे रहा है. एंड ऑन द अदर एंड सहज इज अनदर पार्टी. सहज ने अप्लाई किया था कितना? 2500. क्वेश्चन में देखो सहज who had applied for 2,500 shares failed to pay first call money. Sahaj shares were forfeited and subsequently reissued to Geeta. तो एक तो 40,000 एक्स्ट्रा मनी आएगा फ्रॉम सीमा से एंड सहज ने जो अप्लाई किया था 2,500 शेयर्स की उसकी पैसा नहीं आएगा. तो मैं थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपके वर्किंग नोट. व्हाट विल बी द एक्चुअल ड्यू? ड्यू इज 12 लाख. ड्यू इज 12 लाख. सहज का 2,500 शेयर था. 2,500 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल इज 15 रुपीज. तो कितना होता है? 2500
15 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5 25 5 2 5 2 10 2 12 और 0 0 5 2 तो 0 0 5 7 3 37,500 कितना पैसा सहज का नहीं आएगा। तो मैं कितना प्लस करूं 12,000 में प्लस करूंगा सीमा की 40,000 तो दिस विल बी द एडेड फिगर बैंक में इट बिकेम 12,40,000 एंड सहज का 37,500 माइनस हो जाएगा 0 0 मैं नेट करके चल रहा हूँ हाथ का तो 10 कहीं बोल रहा 3 1 4 0 तो 12,02,500 will be the net figure 12,02,000 applied for okay 37,500 आ रहा है मेरे हिसाब से बुक में। अच्छा applied for 2500 applied for तो allocate कितना था वो भी तो निकालने पड़ेंगे। the party of Shahaz yes the point is noted मैंने वहां पे allotment लेके चल रहा था Shahaz is applied 2500 that means allotted sorry allotted will be तो 5 applied 4 1 is equal to 4 by 5 into 2500 that means 5 2000 ये allotted 2000 into 15 that means 30,000 will not be paid by whom Shahaj तो what will be the figure तो 12 lakhs plus 40,000 सीमा का minus 30,000 not 37,000 मैथ्स को allotment लेके चल रहा था तो what will be the figure 12 lakh ये प्लस हुआ 40 माइनस हुआ 30 तो 12 lakh 10,000 will be the bank account 12 lakh 10 clear तो 12 lakh 10 के एंट्री हम बैंक में लेंगे ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ देख लो एक बार। सहज ने मांगा था 2500 शेयर्स माई प्रोराटा इज 5:4 मांगेगा 5 तो मिलेगा 4 तो मांगा था 2500 उस हिसाब से उसको हमने कितना दिया था इट्स बिकेम 2000 शेयर अगर देता हूं मैं उसको सहज को तो 2000 इनटू फर्स्ट कॉल मनी 15 से 15 रुपया करके 15 into 2000 30,000 पैसा सहज का नहीं आएगा that I have shown here 30,000 तो टोटल 12 lakhs is my due उसमें से 40,000 सीमा का पैसा आ रहा है इसको ऐड कर दो 12,40,000 माइनस करो सहज के पैसा that means 30,000 तो it became बैंक अकाउंट डेबिट to equity shares first call 12,10,000 very clear okay now the point of अब इसके बाद ही बोल रहा है सहज failed to pay the first call money and his share forfeited immediately तो अब इसके बाद हम किस तरह शेयर फॉरफिट करेंगे 2000 शेयर ये ध्यान रखना नॉट अप्लाइड ये नहीं होगा 2000 शेयर हम फॉरफिट करेंगे सो टेक केयर ऑफ फॉरफिट जर्नल एंट्री व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री अभी देखो ध्यान रखना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हुआ नहीं है फाइनल कॉल में 10 रुपीस था इसका मतलब मैं कहां तक पहुंचा 15 plus 15 30 plus 4 10 that means 40 रुपीस कॉल्ड हुआ ये ध्यान रखोगे कहां तक कॉल्ड हुआ एप्लीकेशन कैपिटल में 15 था अलॉटमेंट कैपिटल में 10 था फर्स्ट टर्म में कैपिटल में 15 था तो 15 15 30 अब 10 40 तो 40 रुपया का कॉल अप किया प्रीमियम भूल जाओ अभी प्रीमियम का हमें जरूरत नहीं है तो 40 रुपया कॉल अप हुआ इस पोजीशन में मैं फॉरफिट करने जा रहा हूं तो शेयर कैपिटल में 40 इनटू कितना शेयर फॉरफिट करने जा रहा हूं 2000 शेयर 40 इनटू 2000 की एंट्री लेंगे टेक केयर इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्योंकि एप्लीकेशन में प्रीमियम था अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था दोनों उन्होंने दे दिया तो प्रीमियम रिवर्स के कोई यहाँ पे चांसेस नहीं है सीधा एंट्री लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में जितना नहीं आया 30,000 नहीं आया, फर्स्ट कॉल में डाल दो। अब यहाँ पे मैं बैसिफिकेशन दे दे रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स इज 2000 इनटू कॉल्ड अप वैल्यू इज 40। 40 कहाँ से आया? 15 रुपीज एप्लीकेशन, 10 रुपीज अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में 15 इज टोटल 40। तो 2000 इंटू 40 1 2 3 4 80,000। शेयर फर्स्ट कॉल में इतना नहीं आया, 30,000 नहीं आया, तो मैं बैलेंसिंग फिगर 50,000 यहाँ पे डाल सकता हूँ, ये मेरा आ गया। बट तुम लोग ऐसे मत करो, इस 50,000 को कैलकुलेशन करके निकालो हाउ इट बिकेम। देख लो, मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कैसे 50,000 आया। 2000 उनको मैंने अलॉटमेंट किया था, 2000 इंटू 15 30,000, एप्लीकेशन का 30,000 एंड 2000 इंटू 10 अलॉटमेंट इंटू 10 दैट मीन्स 20,000, तो हो गया 50,000। तो एक टेक्निक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, टेक्निक को ऑलवेज फॉलो भी करोगे, क्योंकि टेक्निक जब तक फॉलो नहीं करोगे, दिमाग से टेक्निक अगर कभी भी हट जाएगा तो मेजरमेंट तुम कर नहीं पाओगे। तो ऑलवेज बी कैलकुलेटेड माइंड, कैलकुलेशन करो। बाकी तो बैलेंसिंग फिगर को ऑलवेज क्रॉस करके चलना, क्योंकि कभी भी यहाँ पे गलती हो सकता है। अगर एक बार गलती हो गया, पूरा कैपिटल रिजर्व जो निकल के लाओगे वो तुम्हारे गलत हो जाएगा। तो उसके लिए ये वेरिफिकेशन करते रहना, माइनस करके ले लो और इसको वेरीफाई कर लो 50,000 कहाँ से आ रहा है, दिमाग में रखो इसको, दैट विल बी द मोर बेनिफिटेड टू यू। तो शॉर्ट फॉरफिट का इंटीमेंट डाल दे दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक बोला है कि हमने अभी तक फाइनल कॉल किया नहीं है। फॉरफिट करने का बाद ये भी बोल रहा है that these shares were immediately reissued to Geeta for 60 per share, 50 per share paid up। अब यहाँ पे बोला है क्या, 40,000 में मैंने फॉरफिट किया, 60 रुपीज में मैं इसको इशू करूंगा, दैट मीन्स 10 रुपीज इज माय प्रीमियम, 50 इज पेड अप, 50 पेड अप मीन्स इट इज 50। मतलब वो बोल रहा है कि फुल्ली कॉल्ड हो गया, उस कंडीशन में मैं रीइश्यू कर रहा हूँ। दिस इज ए वन अदर लैंग्वेज टू बी रिमेंबर इन योर माइंड कि ये लैंग्वेज क्या होता है। ये बोल रहा है कि हमने 40 रुपीज में तो फॉरफिट किया, बट उसके बाद क्या बोल रहा है, 40 रुपीज का फॉरफिट करने के बाद 50 रुपीज का शेयर को हम 60 रुपीज में बेच रहे हैं, दैट मीन्स 10 रुपीज प्रीमियम। अब 50 रुपीज का बेच रहा है, क्यों बोल रहा है कि 50 रुपीज मेरा पेड अप हो गया, दैट मीन्स फाइनल कॉल मैंने कॉल कर लिया। तो फाइनल कॉल करने के बाद अगर मैं उसको लेता हूं तो दैट मीन्स वो माइनस होके आएगा। ये चीज ऑलवेज दिमाग में रखोगे, अदरवाइज इसमें गलती होगा। तो बैंक के एंट्री लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री लो, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में इशू हो रहा है, मैं यहीं पे बता दिया कैसे प्रीमियम में इशू हुआ है। 50 रुपए का शेयर मैं 60 में बेचूंगा, तो दैट इज माय प्रीमियम एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना शेयर मैं रीइश्यू कर रहा हूँ, 2000 शेयर, 2000 इंटू 60 रुपीज करके 6 दूनी 12, 1 2 3 4, सॉरी 1,20,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 50 दूंगी, 50 रुपीज का शेयर हमने 10 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, तो 10 इंटू 2 20 रुपए यहाँ पे जाएगा, और 50 इंटू 20 मीन्स 1 लाख। तो दिस इज द एंट्री, रीइश्यू के एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 20,000। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 40 रुपीज में हमने फॉरफिट किया। फर्स्ट कॉल के बाद हमने फॉरफिट किया था, फर्स्ट कॉल पर मेरा 40 रुपीज कॉल हुआ था, उसके बाद उसको हमने रीइश्यू किया, कितने में, 60 रुपीज में पेड अप
50 रुपीज, दैट मींस ये बोल रहा है कि हम 60 रुपीज में जब रीइश्यू कर रहे हैं तब मेरा पेड अप वैल्यू 50 रुपीज कैलकुलेशन करके चलेंगे। अगर पेड अप 40 बोल देता तो मेरा प्रीमियम 20 हो जाता। दिस इज द लैंग्वेज टू बी वेरी मच कीप इन योर माइंड कि पेड अप कितना दे रहे हैं, पेड अप एंड कॉल्ड अप। मैं इसके बारे में पहले भी लास्ट वीडियो, उससे पहले वीडियो में मान लो तुम लोगों को दे रखा है कि पेड अप, द मीनिंग ऑफ पेड अप एंड कॉल्ड अप तुम्हें ऑलवेज याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज इन्हें कुछ टिपिकल पॉइंट में आ सकते हो। तो इट इज बिकेम 1,20,000 हो गया। अब मैं इस पे क्या करूंगा, कैपिटल रिजर्व निकालूंगा। तो व्हाट इज माय लॉस ऑन रीइश्यू? 0, बिकॉज इट इज इश्यूड ऑन प्रीमियम। इसका मतलब जितना मेरे पास आ गया था उतने पूरे पैसे को मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। कितना है और एक बार चेकआउट करो। 2000 सहज का शेयर था इनटू 15 रुपीज एप्लीकेशन आ गया था एंड इनटू 10 रुपीज अलॉटमेंट आ गया था। दैट मींस दैट 50,000 जो मेरा शेयर फॉर्मेट में गया था, देख लो वहां पे 50,000 का मैंने एंट्री लिया था। तो 15 दूने 30 and 10 into 20 is 20,000. It became 50,000. So this 50,000 will transfer to capital reserve entry, equity shares capital, account debit to capital reserve is the 50,000. This is the sum, nothing else. नरेशन डाल दो, इसको 2 बार 3 बार करो। इस टाइप का ट्रिकी सम मैं देते रहूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द बुक डायरेक्टली, क्वेश्चन बता दूंगा, मेरे को आंसर चाहिए। थैंक यू।